called Matplotlib and a Pandas visualization. There is a little difference between Pandas visualization and the Matplotlib. So I'll covering both the topics. Earlier it was available in CS as well, Matplotlib, but now it's removed from this session 2021. So, but CS people can do this this work for the project work. So now what's the syllabus says? I'm sharing my screen. I hope that will be visible to everyone. This is my screen. So this is data visualization and a Matplotlib Pandas. So there is a difference between Matplotlib and a Pandas visualization. When I say these two, the term is data visualization, but the term which we use is called data visualization. Now, what the syllabus says? Syllabus says you should know the purpose of the plotting, drawing and saving of the different types of plots. And we have 6 types of plots, I think 6 or 7: line plot, bar graph, histogram, pie chart, frequency polygon, box plot, and scatter plot. These are the plots which we have to do. In previous syllabus, that was not clear up to what extent we have to cover, because if I see line plot, there are 20 functions, there are 30 functions. Up to what extent we have to cover? So in this year's syllabus, they have written this, that what you have to do in the particular chart is what customization. Customization means आपको कलर पता होना चाहिए, स्टाइल ऑफ अ लाइन पता होना चाहिए, विड्थ कैसे ऐड करते हैं, लेबल कैसे ऐड करते हैं, टाइटल और लेजेंड. So this much is sufficient for the board examination point of view. So that is what about the syllabus of informatics practices. Now when I talk about data visualization, what is a visualization basically? So whenever we have, because that topic will be very much required for the project work, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि होपफुली जो सिलेबस रिड्यूस होके आएगा उसके अंदर पांडास 1 होगा. अब उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं पता, बट विजुअलाइजेशन अल्टीमेटली होगा ही होगा, बिकॉज विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें क्या करना है, ग्राफ्स को, यानी कि जो प्रोजेक्ट बन के आएगा उसको विजुअलाइज करना है. नाउ आई हैव रिटन सम डेफिनेशन हियर कि डेटा विजुअलाइजेशन इज अ ग्राफिकल representation of a form and a data by using visual elements like chart, graph, map. All this is the definition of a visualization. What is the purpose of visualization? Now, what is Matplotlib? So Python has given us a different libraries. So Matplotlib is one of the library in Python which allow you to create a 2D graph. So that is the purpose of Matplotlib. Now, is there any difference between Matplotlib and PyPlot? Yes, there is a difference. PyPlot is a sub library of Matplotlib. So Matplotlib is a bigger library, and whenever we need a 2D graph, we use PyPlot. So that is what the definition of a PyPlot. So whenever we are importing any of the this kind of 2D graph, we write import matplotlib.pyplot as PLT. So PLT is the alias name which we access normally. So that is what the reason is we are using PyPlot as well. Now different types of charts. I have written some definition because when we are teaching to the students, we should know why we have a different types of graphs. Those who are from the commerce background, those who have studied the economics, those who are from the science background, they won't be able to, maybe they have studied somewhere कि different types of charts have a different properties. यानी कि हर जगह हर chart नहीं लगता. There are specific area wherein we can place a line chart. There is a specific area where we can use bar chart. But for the student, we can say that any chart can be implemented with the sum of the data. So line chart, when we talk about line chart, so line chart is a line graph, is a type of chart with a displays information as series of data point called markers. यानी कि line chart पे क्या होगा, एक line दी होगी और उसके ऊपर हम जो points x axis और y axis पे डालेंगे वो marker के through डाले जाएंगे. So that is what the line chart is. और बार ग्राफ में क्या होगा, इट प्रेजेंट द कैटेगोरिकल डेटा, रेक्टेंगुलर बार के अंदर डेटा के डिस्प्ले होगा. अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चाहिए आपको, और जो आपका चार्ट होगा वो किस में डिस्प्ले होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में. टॉकिंग अबाउट बार चार्ट. हिस्टोग्राम, अगेन हिस्टोग्राम इज अ वर्टिकल एक्सिस, horizontal axis in another dimension. So it usually has a bin. So whenever we are plotting a histogram, so we have to take care of the bins, minimum value and a maximum value. So that is what histogram, for example, हम लोगों ने 8th क्लास में 9th क्लास में वो टेली चार्ट बनाते थे कि एक क्लास के अंदर इतने बच्चों के मार्क्स हैं तो उसको एक बार ग्राफ पे दिखाई. तो हिस्टोग्राम उस टाइप की चीजों के लिए बेटर रहता है. देन पाई चार्ट
क्या करता है, डिवाइड इनटू द सेगमेंट विद ईच पेयर ऑफ रिप्रेजेंट अ वैल्यू। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब पाइथन की बात करें और अगर मैं नॉर्मल इकोनॉमिक्स में बात करूं या स्टैटिस्टिक्स में बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में फर्क इतना होता है कि हिस्टोग्राम भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर जा रहा होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम उसी चीज को लाइन के थ्रू ड्रॉ कर रहा होता है। तो बहुत ज्यादा पाइथन के अंदर भी उन लोगों ने डिफरेंशिएट नहीं किया कि देयर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन विच ड्रॉज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। Box plot is a new concept. I think most of the people have not heard about, maybe. So box plot is a graphical representation which displays the first quartile, median, third quartile, maximum. So that is what also known as whisker plot. यानी कि box plot को हम whisker plot भी कहते हैं. Then we have a scatter diagram. Scatter diagram, those who have studied mathematics in class 12, so they must have read about a scatter plot. कोरिलेशन के अंदर हम लोग पढ़ाते थे कि स्कैटर प्लॉट नाम की चीज होती है। नाउ हाउ टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इन IDLE। अब मैटप्लॉटलिब के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ गो टू कमांड प्रॉम्प्ट वेयर योर पिप इंस्टॉल्ड, राइट द कमांड पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। सो दिस इज माय कमांड टू इंस्टॉल द मैटप्लॉटलिब। दिस इज an additional library which is not available in your Python library, so you need to install. So because I am taking two concepts simultaneously, one is a matplotlib, another is a pandas visualization. So I have used both the libraries herein. NumPy I have not used somewhere, so but now normally we import the library called pandas, so NumPy लिख देते हैं. Now this is the first very simple first 6 lines. This is, if you see these 6 lines, 1 2 3 4 5 6, these 6 lines I have not used any other parameter to means जब भी कोई ग्राफ बनाना है तो मुझे बेसिक ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए प्लॉट के अंदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मैंने 2 लिस्ट बनाई और पास कर दिया और मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। इफ आई सी माय ग्राफ इज देयर, is it clear? So I just need to, I am using a function called plot. Plot is a method in PLT pyplot, so which is used to default, by default it is a line, so it will automatically draw the line. Then we have a bar. Now plt dot bar, so it will make a bar chart, it means categorical. Then I am having a box plot, so I have just passed this, so this is my box plot. This is a median value, the orange line shows the median value. Then I am having a scatter plot, so I have used here something different. X axis पे मैंने ABC लिख दिया और मेरे को प्लॉट क्या करना है, ABC. So this is my scatter plot. A का 4.44 है, B का 5 है, C का 6 है. So that is one of the ways to display the scatter plot. Now let's see the pie chart. So pie chart require only one X, basically Y parameter and the label. So even if I pass only Y, this 4 5 6, the graph will be available. If I delete this and if I just execute this line, my graph will be there, but it will not display what I am displaying. So that's the reason we need to use labels. So it will display the values, it will display the labels what we are displaying. कि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लाइनों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता होना चाहिए। यानी कि बच्चे को जितना पढ़ाना है उसके अंदर हमें उसको सिर्फ ये बताना है कि बेटा ये 2 चीजें की जरूरत है और तेरा कोई भी ग्राफ बन सकता है, बट कहां पर कौन सा बनाना है दैट ही हैज टू अंडरस्टैंड. तो बीइंग अ कंप्यूटर टीचर वी हैव टू टेल कि ये 2 चीजों से ग्राफ बन जाएगा. नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो व्हेनेवर वी से हिस टाइप इक्वल टू स्टेप, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि वही डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखने लग जाता है, बट वो लाइन नहीं दिखेगी इसमें क्योंकि लाइन निकालने के लिए मुझे कुछ एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि आपको कोई भी ग्राफ बनाना है मैटप्लॉटलिब के थ्रू, पाइप्लॉट लाइब्रेरी के थ्रू, सो यू जस्ट नीड अ फ्यू पैरामीटर्स व्हिच यू पास एंड आपका डेटा क्या हो जाएगा, प्लॉट कर देगा. सो लेट्स डू सम कस्टमाइजेशन. सो हियर इन आई हैव रिटन सम लिस्ट ऑफ पाइप्लॉट फंक्शन टू कस्टमाइज प्लॉट. यानी कि आप पाइप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर भी काफी सारे फंक्शन है, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड this much only. So first is grid. Grid is whenever we need a grid,
एज यू नो, ये जो यहाँ पर लाइंस वाली आती हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो दैट्स कॉल्ड एज ग्रिड. देन लेजेंड, लेजेंड जो साइड में लिखा आता है कि ग्राफ किस चीज को प्लॉट कर रहा है, लाइन पे ए लाइन इसके लिए, बी लाइन इसके लिए, सी लाइन इसके लिए. देन सेव फिगर, इफ यू वांट कि automatically when the graph will be available, that will be automatically saved somewhere, that you need to use save figure. Show, when we use a normal ideally mode, we need to display, we need to use show. Then I'll use xtick somewhere, I'll use ytick, xtick नहीं लिखा हुआ, xtick लिखा हुआ, x लेवल, y लेवल, ये सब कुछ हम लोग यूज करेंगे कि कैसे हम ग्राफ के अंदर ये जो फंक्शंस है, these all functions are for the matplotlib, which can be used for the customization of a plot. Is it okay? Now, what I will do, I have taken the same data, line chart with basic customization. मैंने फिर से लाइन चार्ट ही बनाया, लेकिन मैंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन कर दी. मैंने एक्स लेबल डाल दिया, मैंने वाई लेबल डाल दिया, मैंने प्लॉट का टाइटल डाल दिया, एंड साथ ही साथ मैंने कहा plt डॉट सेव फिग, ऑटोमेटिकली क्या करो, इस लाइन, इस ग्राफ को आप कहां सेव कर दो, बाय डिफॉल्ट ये इसको png फॉर्मेट में स्टोर करेगा. बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेगा, png फॉर्मेट में स्टोर करेगा, सो दैट इट विल बी विजिबल. तो जहां पर भी सेव फिग लाइन लिखी होगी, ग्राफ वहीं से सेव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर डाल दिया सेव फिग, तो इसका मतलब लाइन आएगी और ग्राफ सेव हो जाएगा. ना उसके अंदर लेबल आएगा एक्स का, ना उसके अंदर वाई लेबल आएगा, ना टाइटल आएगा. तो आई जस्ट, my line chart is there, this is my y label, this is my x label, this is my line chart. Is it clear? So this automatically gets saved in your whatever the path we have given, it automatically gives you the. So that is what the basic customization. I've used 3 customization. First x label, second y label, this is my x label, this is my y label, and this is my title of the chart. And I have used save figure option. I can run this code in my ideally as well. Now, another example I have taken for the bar chart. So I have taken fruit, I have taken a data somewhere, fruit like by the people, number of people, and I'm just drawing, I just draw the bar chart again. And this is called xtick, जो automatically यहाँ पर आ रहा है, apple, orange, banana, kiwi fruit, blueberry, and grape. So this is actually my xtick. In few of the graphs, it will automatically come. Now, this is a code wherein what I am doing, I am making 2 lines in a single graph. Class versus number of students and class versus age of the child. So what I have done, what I have done, I have taken plt.plot class comma n, plt.plot class age. So my class will be on the x-axis and my y-axis will be the number of students and age of a person, age of the students, whatever the student. So this is what the basic idea of a graph, wherein we have used just a simple customization, not much customization. Now, customization of a chart through the method, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके मेथड है उन सबकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है. कुछ तो कॉमन है, जैसे मान लो लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, जिसमें भी लाइन आ रही है, कुछ तो कॉमन मेथड्स हैं जो हम पास कर सकते हैं प्लॉट मेथड के अंदर, जो हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं जितना हमारे कोर्स के अंदर है. जैसे कि मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट. हाँ, वन क्वेश्चन इज हियर कि बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू ड्रॉ एनीथिंग you will see all these are in blue color. So the default color for visualization is blue always, but we can change this color now. So I am giving you here an idea ki what are the various options which we can use: color, draw style, what style you want, fill style, label, line style, line width, marker, marker size, x data and y data, which is the x-axis and y-axis, to customize my data. Now again I am taking the same example which I have given above, ki number of student, age, class,
and I have used plt.grid, so that grid will be there on my chart. Then I have given X label, Y label and title. Now this much we have already discussed कि what we can do. Grid is new one here कि grid से क्या होगा, लाइन आ जाएगी ग्राफ के बीच में. Now अब लाइन मेरे पास दो हैं, एक मेरे पास क्लास वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक क्लास वर्सेस एज है. तो मैंने मार्कर बोला कि मार्कर इज ग्रेटर देन, मार्कर के अंदर आप 0x डिफरेंट है मार्कर, बहुत सारे मार्कर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं. लाइन स्टाइल आई सेड मुझे डॉटेड लाइन चाहिए तो मैंने उसमें हाइफन लगा दिया. लाइन की विड्थ थोड़ी सी मोटी चाहिए इसलिए लाइन विड्थ कर दिया. मार्कर साइज मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा दिखे मुझे कि मार्कर आया है मेरा. देन कलर ऑफ द मार्कर इज M इज फॉर मेजेंटा, सो यू कैन चेक द कलर कोड. मार्कर फेस कलर के मींस जो मार्कर दिखेगा फेस कलर उसका क्या होगा, K मतलब ब्लैक, एंड मार्कर फेस कलर ब्लू, कलर इज रेड. सो दिस इज व्हाट so this is my line graph wherein this is my I think this is my age of this red color. सेकेंड वाला नीचे दिख रहा है और ऊपर वाला फर्स्ट वाला है. तो आप देख सकते हैं कि चेंज हो गई, यानी कि ये हमने बेसिक कस्टमाइजेशन ग्राफ की कर दी. हमने उसका मार्कर चेंज कर दिया, हमने उसके लाइन स्टाइल चेंज कर दी एज रिक्वायर्ड बाय दिस, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस. आई थिंक दिस मच इज क्लियर. सो दिस इज एंड ऑफ मैटप्लॉटलिब. कि मैटप्लॉटलिब में हम क्या कर रहे हैं, हमने बेसिक डेटा उठाया, उसको ग्राफ प्लॉट कर दिया. लेकिन जब मैं इतना हमारा सीएस के अंदर होता था, जो पिछला कोर्स खत्म हो गया है उतना हमारा सीएस के अंदर था. लेकिन जब मैं पांडास की बात करता हूं, क्योंकि आईपी जो है बेसिकली पांडास के ऊपर काम कर रहा है, तो पांडास विजुअलाइजेशन अपनी अलग भी है. जैसा कि मैंने लिखा है, प्लॉटिंग ऑफ डेटा फ्रेम एंड सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द मैटप्लॉटलिब.pyplot भी. यानी कि अगर आपको पांडास पढ़ रहे हैं आप, अगर आपको उसको प्लॉट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, pyplot के थ्रू भी यूज कर सकते हैं. बट इट इज इजियर, it is always easier when you have a data frame object, you can draw directly from the data frame object rather than passing the parameters. So version 0.17 pandas object, यानी कि जब वर्जन pandas का जो वर्जन 0.17 मार्केट में आया तो उन्होंने आप pandas के अंदर ही प्लॉट मेथड को इनबिल्ट कर दिया. Am I clear on this? So इसका मतलब जब आप अब आईपी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जो एनसीईआरटी आएगी उसमें दोनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं. स्टार्टिंग वहां से करके हम लोग पांडास विजुअलाइजेशन पे ही आए हैं. मतलब बेसिक जितना करने के बाद एक दो ग्राफ पे हमने बताया कि मैटप्लॉटलिब में ऐसा ही होता है. देन वी कम अप ऑन द पांडास विजुअलाइजेशन ओनली, कि भाई डायरेक्टली आप पांडास, आप रादर देन गोइंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेपरेटली, आपके पास डेटा फ्रेम है, आप डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स की कोई भी सीरीज उठाइए, उससे ग्राफ बना लीजिए. So what you can write s dot plot, this is my pyplot, or df dot plot. S is my object of my pyplot, or I can directly say df dot plot. So when I say df dot plot, so by default it will draw the line only of blue color. तो ये मैंने एक जो पिछला आप लोगों ने फीडबैक भरा था कनेक्टिविटी वाला, उसी को मैं लेके चला हूं और उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं कि मैं उसी के ऊपर सारे के सारे ग्राफ बना रहा हूं. थोड़ा सा मैंने इसको एक्सटेंसिव किया है कि ग्राफ बनाने के लिए मैंने ग्रुप बाय भी यूज कर लिया कि मेरे पास डेटा एक ऐसा आ जाए जिसका मैं ग्राफ बना पाऊं. तो मैंने यहां पर सिंपली एक, आपने जो फाइल भरी थी पिछली feedback.connect, मैंने उसको CSV में कन्वर्ट किया और मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया. सो दिस इज माय CSV फाइल, सो विच यू हैव फिल्ड. आप देख सकते हैं, आप लोगों के नाम दिख रहे होंगे यहाँ पर. तो आप लोगों ने जो जो स्कोर दिया था वो सारा यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों ने 5 दिया, कुछ ने 4 दिया. सो ऑल दिस इज अवेलेबल हियर. सो नाउ आई हैव जस्ट रिटन df.plot. So whatever the numeric value we are having, it will automatically draw the graph. यानी कि जब मैंने df.plot लिखा तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है आप देखेंगे वो ये वाली लाइन जो नीचे वाली है वो एक साथ आ गई, लेकिन आईडी एक सीक्वेंस में है. तो आईडी तो मेरी बिल्कुल एक ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, लेकिन बाकी सारी फिगर 5 4 5 4 5 है, तो वो लाइन मेरी एस टाइप से डिस्प्ले हो गई. तो अगर मैं लिख रहा हूं df.plot तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी ऑटोमेटिकली वो सबका लाइन ग्राफ बना देगा. नाउ आई कैन राइट. अब यहां पर एक थोड़ा सा अलग शुरू होता है, बिकॉज प्लॉट मेथड है, प्लॉट मेथड के अंदर एक पैरामीटर होता है काइंड.
which tell us what sort of graph we can plot. So मैंने यहाँ पर लिखा df.plot kind equal to line which is by default, automatically ये आ जाएगा. तो मेरा सेम ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ नीचे बन गया. Now data frame has an object called hist which automatically draw the histogram for all the numeric value. You can see कंटेंट का भी बना दिया, आईडी का भी बना दिया, ओवरऑल एक्सपीरियंस का भी बना दिया, प्रेजेंटेशन का भी. अब जो काइंड पैरामीटर मैंने यूज करना है, क्योंकि जब मैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो मैं प्लॉट मेथड के अंदर बेसिकली सारे के सारे पैरामीटर पास करके उसको कस्टमाइज कर सकता हूं और उसका डेटा फ्रेम बना सकता हूं. तो मैंने यहां पर बात की कि काइंड के अंदर क्या क्या चीजें मेरे कोर्स के हिसाब से. काइंड बाय डिफॉल्ट लाइन है, मैं बार लिख सकता हूं. मैंने एक नई चीज यहां पर बार एच यूज कर लिया कि हॉरिजॉन्टल बार चाहिए मुझे. हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, पाई प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट. तो दिस आई एम मैंने क्या करना है, अब जो मेरी CSV फाइल है, ये वाली जो मेरी ये CSV फाइल मैंने रीड की है, इसी के ऊपर मैं सारे के सारे ग्राफ बना के देख रहा हूं. नाउ तो सबसे पहले मैंने लिखा, अब मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम का ग्राफ चाहिए, क्योंकि जब मैंने लिखा था df.plot तो उसने क्या किया, उसने सारे ग्राफ बना दिए 4 लाइन. अब मुझे तो सिर्फ कंटेंट का चाहिए, तो आई हैव जस्ट रिटन df कंटेंट. मैंने कंटेंट उठाया, मैंने यहां से सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया और प्लॉट लिख दिया, तो मेरा एक लाइन ग्राफ बन के आ गया. नाउ कस्टमाइजेशन करनी है मुझे. अब कस्टमाइजेशन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे. तो मैंने कस्टमाइजेशन यहां पर सेम कस्टमाइजेशन जो मैंने नॉर्मल ग्राफ की थी, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, मार्कर साइज, कलर, मार्कर फेस कलर, मैंने सेम कस्टमाइजेशन प्लॉट मेथड के अंदर लिख दी, सो दैट कि मेरी कस्टमाइजेशन हो जाए. और ग्रिड यहां पर मैंने चला दिया. अगर आप एक्स लेबल, वाई लेबल जुपाइटर में चलाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा. That, but otherwise it will work in ideally. You can see my graph. It's a customized graph wherein I am having a title. लाइन का कलर मेरा मेजेंटा है क्योंकि मैंने यहाँ पर M लिखा हुआ है. मार्कर का साइज मेरा मैंने दे रखा है ये, that is my triangle. If I change, it automatically change to circle. So and lines. So this will display my graph. I think is it clear? So how we can go with the pandas visualization? कि pandas के अंदर हमारे पास, क्योंकि अब जब बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसको क्या करना है, कहीं से भी कोई डेटा लेके आना है. जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आईपी का प्रोजेक्ट में हम चाह क्या रहे हैं, हम आईपी के प्रोजेक्ट में ये चाह रहे हैं कि बच्चा या तो data.gov.in पे जाए, या बच्चा कहाँ जाए, कैगल पे जाए, वहां से कोई डेटा फ्रेम उठाए और उसके ऊपर कुछ 15-20 एनालिसिस कर दे और साथ में कुछ ग्राफ्स बना दे. That is all about the project in pandas in IP this year. Now, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा डेटा जो था थोड़ा मीनिंगफुल नहीं था, तो मैं सारे ग्राफ नहीं बना सकता था, तो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बाय भी यूज किया. सभी लोगों ने SQL पढ़ रखा है तो सबको पता है कि ग्रुप बाय क्या करता है. तो ग्रुप बाय मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप किया और उसको काउंट कर लिया. मैंने सब्जेक्ट वाइज ग्रुप किया और उसको काउंट कर लिया और उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, ग्राफ को प्लॉट कर दिया. इफ यू सी, आई हैव जस्ट काउंटेड कि कौन से टीचर्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं. तो 53 टीचर्स ने भरा था पिछली बार कि वो दोनों सब्जेक्ट्स ले रहे हैं. कंप्यूटर साइंस 35 ले रहे हैं, 25. तो मैंने उसका एक लाइन चार्ट बना दिया. दिस इज माई बोथ 53 कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स. तो मैंने उसका एक ग्रुप बाय लगाया. मैंने कहा df.group by सब्जेक्ट काउंट. मैंने कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए उसने सारों का काउंट किया है. इफ यू सी, इट काउंटेड आईडी, इट काउंटेड नेम, इट कंटेंट, प्रेजेंटेशन. पांडास 2 के अंदर लिखा हुआ है कि ग्रुप बाय कैसे करते हैं. तो अगर मैं ग्रुप बाय के अंदर कोई भी चीज नहीं लिखूंगा तो जितने भी कॉलम्स है वो सबका ग्रुप करेगा. अगर मुझे पर्टिकुलर चाहिए तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा. नाउ अगेन मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं बार चार्ट बना रहा हूं. सेम डेटा, मैंने कहा कि भाई आप, क्योंकि मेरे पास एक्स एक्सिस तो है ही और वाई एक्सिस भी है, तो मैंने कहा उसका मैं बार ग्राफ भी बना सकता हूं. तो मैंने उसी चीज को बार ग्राफ में दिखा दिया कि कितने लोग ऐसे हैं बोथ, यानी कि मेरे पास क्या क्या है, मेरा डेटा क्या है. मैंने कंटेंट, अब मैंने यहां पर थोड़ा सा चेंज किया. मैंने यहां पर तीनों कॉलम उठा लिए, क्योंकि जब अगर मैं लिखता सीधा df.plot तो होता क्या, आईडी भी प्लॉट हो जाती, क्योंकि आईडी एज वेल अ न्यूमेरिक वैल्यू. तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम को एक्सेस किया, मैंने लिखा df और तीनों कॉलम्स के नाम लिख दिए और मैंने कहा प्लॉट काइंड इक्वल टू बार. तो उसने क्या किया, इन तीनों कॉलम्स को प्लॉट कर दिया. तो यू कैन सी
सब्जेक्ट क्योंकि डीएफ में इंडेक्स वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली उसने उसको क्या किया, प्लॉट कर दिया. Sir, when you are specifying save figure and you're giving the path, I just wanted to know why you have given double slash. Whenever we are taking something from the other libraries which is not a current path of my library, where current path of my directory, so we use double slash always. That is Okay, always sir. in C++ as well. In customization, जो स्टूडेंट को कस्टमाइजेशन करना है, तो कस्टमाइजेशन में मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने कहा जी विड्थ की जैसे ऐसा यहाँ कोई जरूरत नहीं है, विड्थ आई कैन रिमूव. मैंने कहा टाइटल रिपोर्ट ऑफ द ग्राफ. फिर मैंने कहा कलर, अभी बाय डिफॉल्ट क्या कलर उसने लिया ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन. मैंने क्या कहा रेड, येलो, पर्पल. मैंने कलर चेंज कर दिया क्योंकि मेरे पास 3 ग्राफ्स हैं, 3 प्लॉट्स हैं, मैंने तीनों का कलर चेंज कर दिया एज कलर. तो एज कलर मतलब ये जो लाइन आ रही है, अगर आप ये अभी लाइन देखेंगे, जो इनका बॉर्डर है लाइंस का, हर एक कैटेगरिकल बॉर्डर है वो क्या है, नल है, अभी कुछ नहीं दिख रहा. लेकिन जब मैं एज कलर ग्रीन करूंगा तो ये जो बॉर्डर है ये ग्रीन कलर का आ जाएगा. लाइन विड्थ, ये जो लाइन बनेगी एज कलर की उसका लाइन विड्थ. और जो लाइन स्टाइल किसका हुआ, अब वो अगेन वो जो बाउंड्री आ रही है उसका लाइन स्टाइल. अब मैंने यहां पर एक नई चीज यूज की है, फिगर साइज. आई कैन स्पेसिफाई द साइज ऑफ द फिगर. अगर नहीं यूज करूंगा तो डिफॉल्ट में जितना साइज लेगा, जितनी जगह के लिए चाहिए उतना वो दिखाएगा. तो ये मेरी एक कस्टमाइजेशन हुई. आई जस्ट डिस्प्ले दिस. तो दिस इज माई ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ मेरा एक कस्टमाइज ग्राफ बन के आ गया. कस्टमाइज ग्राफ कैसे बन के आ गया कि लाइन कलर ग्रीन हो गया, डैश्ड लाइन हो गई, लेजेंड अपने आप आ गया. तो दिस कस्टमाइजेशन कलर मैंने चेंज कर दिया. तो दिस इज माय कस्टमाइजेशन. आई थिंक आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक राइट नाउ. अब मैंने यहां पर एक और हैच करके यूज किया है. अब मैंने क्या किया, फिल, फॉल्स और हैच. हैच से क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद द हैच, यू विल सी कि इसके अंदर क्या हो गया, गोले आ गए, यानी कि वो जो फिल था वो खाली हो गया. मैंने यहां पर कस्टमाइजेशन ऑफ हिस्टोग्राम कर दिया कि मैंने हिस्ट बनाया. मैंने हिस्टोग्राम किसका बनाया, सिर्फ मैंने कंटेंट का हिस्टोग्राम बनाया. मैंने कहा pf कंटेंट प्लॉट काइंड इक्वल टू हिस्ट, एज कलर क्या करो ग्रीन. मैं इसको अगर रेड कर दूं तो इसका रेड कलर आ जाएगा. चेंज दिस कलर रेड इन स्मॉल लेटर्स और आई कैन राइट द कोड. लाइन विड्थ और हैच से क्या किया, मैंने हिस्टोग्राम के अंदर कुछ फिल कर दिया. तो दिस इज माय हिस्टोग्राम विद अ पांडास विजुअलाइजेशन. नो नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन के अंदर मैंने और थोड़ा सा यूज किया. कस्टमाइजेशन ऑफ बार चार्ट नहीं है, इट इज कस्टमाइजेशन ऑफ हिस्टोग्राम. अगेन नॉट हिस्टोग्राम, इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. जब मैंने शुरू में बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, जब आप इस टाइप इक्वल टू स्टेप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा. So this is my frequency polygon. If you see that there is a change in the figure, if you see there is a change in the figure, that is my frequency polygon. वो cumulative frequency लेता हुआ चलता है. I hope I am clear on this. Now, as I said, कि frequency polygon normally कहता है कि जो center of the each part है वो that should be joined. तो मैंने उसको भी दिखाया इस कोड के अंदर. मैंने क्या किया, मिनिमम एक एरे बनाया, मिनिमम एरे. उसके अंदर मैंने अपने कंटेंट के जितने भी स्कोर था उसको निकाल लिया और एज ए नंपाई एरे मैंने स्टोर कर लिया. फिर मैंने क्या कहा कि आप क्या कीजिए, y और एजेस, np डॉट हिस्टोग्राम आपको 2 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, एक y और एजेस. वो निकालने के बाद मैंने कुछ फॉर्मूला लगाया सो दैट मेरा लाइन भी आ जाए. इफ यू सी दैट लाइन इज डिस्प्लेइंग ऑन माई हिस्टोग्राम. so that is what the actually frequency polygon which displays the line. अदरवाइज बच्चे के लिए मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट है कि अगर उसको हम ये बता दें कि भाई पांडास के अंदर या पाइथन के मैटप्लॉटलिब के अंदर अगर हिस्ट टाइप स्टेप लिख देते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है. बट इट विल बी अवेलेबल इन एनसीईआरटी एज वेल कि हाउ टू मेक दिस लाइन ऑन दिस हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. नाउ अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हमने कहा कि भी स्कैटर डायग्राम बना दो. अब स्कैटर डायग्राम के लिए यू नीड काइंड स्कैटर. X पे कंटेंट रहेगा, Y पे प्रेजेंटेशन रहेगा. 2 एक्सेस आई पास, so it's automatically displaying X axis or Y axis. I can change the X axis and Y axis whatever the as per the requirement. Now
अगेन df.plot kind इक्वल टू स्कैटर। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर दी कि जी क्या करो आप, एक तो फिगर का साइज बढ़ा दो, एज कलर थोड़ा सा ब्लू कर दो, मार्कर का स्टाइल बाय डिफॉल्ट मार्कर क्या सर्कल है, स्मॉल ओ है, मैंने उसका लाइन विड्थ बढ़ा दी और कलर चेंज कर दिया। सो दैट इज व्हाट अ कस्टमाइजेशन टू माय बार चार्ट। अगर मैं इसी चीज को आइडियली में चलाऊंगा तो आपको जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है थोड़ी अलग दिखेगी। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल शो यू द कस्टमाइजेशन इन आइडियली। नाउ बॉक्स प्लॉट आई सेड, क्योंकि बाकी सारा डेटा मेरा ऐसा नहीं है जिसका मैं बॉक्स प्लॉट बना के देख सकूं, तो मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ dsid.plot kind इक्वल टू बॉक्स लिखा है कि मेरा बॉक्स प्लॉट बन के आ जाए। तो दिस इज माय मीडियन, बिकॉज वहां पर वैल्यू 1 2 3 4 130 या कुछ 133 शायद रिस्पॉन्सेज थे, तो उसके हिसाब से ये बन के आ गया। अब इसकी कस्टमाइजेशन मुझे ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा कस्टमाइजेशन पे ध्यान नहीं देना, मैं दो ही कस्टमाइजेशन कर रहा हूं यहाँ पर। एक तो मैंने कलर चेंज कर दिया इसका, और मैं इसकी वर्टिकल कर सकता हूँ, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल आ रहा था वो वर्टिकल कर दिया। दैट्स इट, दो ही कस्टमाइजेशन सफिशिएंट है। नाउ लेट्स कम टू द पाई चार्ट। पाई चार्ट के मैंने क्या किया, मैंने काउंट किए कंटेंट वाइज, क्योंकि मेरा काउंट आ रहा था। मैंने क्या किया, कंटेंट वाइज काउंट ग्रुप किया और डेटा को निकाला और उसको पाई चार्ट में दिखा दिया कि भाई प्रेजेंटेशन यानी कि 5% यानी कि 5 मार्क्स कंटेंट में कितने लोगों ने दिए और 4 मार्क्स कितने लोगों ने दिए, अंदर कितने परसेंट लोगों ने 4 दिए। 90% लोगों ने मुझे 5 दिए थे पिछली वाली प्रेजेंट जो भी हमारा थर्ड सेशन था, बिकॉज दिस इज अ थर्ड सेशन फीडबैक। तो 90% ने 5 दिए थे और 4% 10% पीपल अराउंड हैज गिवन 4 इन कंटेंट, कि जो कंटेंट मैंने डिस्प्ले किया था उसके लिए। तो आई हैव नॉट गिवन एनी कॉलम नेम, तो सारे डेटा का हो रहा है। तो अगर मैं काउंट में बात करूं तो 102 और 11 का रेशियो है। नाउ लेट्स डू द कस्टमाइजेशन अगेन। जब मैं इसकी बात करता हूं कस्टमाइजेशन की, तो बहुत थोड़ी कस्टमाइजेशन मेरे को करनी है पाई चार्ट में। बाय डिफॉल्ट मैंने यहां पर एक चीज यूज की हुई है वैसे कस्टमाइजेशन के लिए, ऑटो पीसीटी। ऑटो पीसीटी अगर मैं नहीं लिखूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये जो फिगर दिख रही है 9.73 और 90.27 ये डिस्प्ले नहीं होगी। तो ऑटो पीसीटी इज द वैल्यू विच वी वांट टू डिस्प्ले ऑन द पर्टिकुलर पाई चार्ट, दैट इज द वैल्यू। परसेंटेज मींस एनी नंबर, 0.2f मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर मैं 0.2f हटा दूंगा उसकी जगह 4 कर दूंगा तो 4 डेसिमल प्लेसेस चला जाएगा। नाउ दिस इज अगेन सेम ग्राफ बट अ लिटिल चेंज इन दिस। व्हाट आई हैव डन, नाउ आई हैव ग्रुप बाय द सब्जेक्ट, कि अब लोग सब्जेक्ट कितने ले रहे हैं और मैं उस चीज को पाई चार्ट पे लेके आ रहा हूं। तो दिस इज द 46% पीपल इन द प्रीवियस सेशन इज टेकिंग बोथ द सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। 30% उसमें ऐसे थे जो कंप्यूटर साइंस ले रहे थे सारे, एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 22% लोग हैं जो खाली इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। यहां पर मैंने एक और चीज यूज की है विच इज कॉल्ड एज एक्सप्लोड। एक्सप्लोड से क्या होता है, बेसिकली ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है यू कैन सी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो ये एक्सप्लोड आप किसी को भी एक्सप्लोड कर सकते हैं, आप सारों को एक्सप्लोड कर सकते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सप्लोड करके बाहर निकाल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि पाई चार्ट के अंदर सिर्फ दो ही आप कर सकते हैं, एक ऑटो पीसीटी और एक एक्सप्लोड। तो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हमें इतना ही करना है। साथ में अब आपको क्या करना है कि भाई आपको कलर चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट अगेन ब्लू ऑरेंज ग्रीन है, तो मैंने यहां पर कलर्स लिख दिए, कलर RGM, यानी कि मैंने ऊपर वाले कोड में थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा लेट्स सी द कलर चेंज करके क्या होता है। तो दिस आर द कलर, सेम ग्राफ विद अ डिफरेंट कलर। नाउ अब आप जब पांडास 2 पढ़ेंगे तो वहां पर पाइवेटिंग पढ़ेंगे, तो मैंने पाइवेटिंग का डेटा निकाल के भी ग्राफ बना के दिखाया है कि भाई पाइवेटिंग से अगर मैं डेटा निकाल लाऊं तो अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना है तो मैं बना सकता हूं। तो दिस इज द ग्राफ विच टॉक्स अबाउट कि कितने लोग कितना सब्जेक्ट ले रहे हैं। सेम ही ग्राफ है ऑलमोस्ट, कि अब यहां पर मैंने क्या इंडेक्स किया सब्जेक्ट को और वैल्यूज उठाई कंटेंट। तो दिस इज माय कंटेंट। कंटेंट वाइज मैंने क्या किया, बोथ दी सब्जेक्ट के हिसाब से जो लोग दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनका जो एवरेज स्कोर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट पाइवेट टेबल आपको मीन वैल्यू देता है, तो उसने क्या किया बोथ दी सब्जेक्ट्स को लिया और वहां से वैल्यूज जो कंटेंट में वैल्यूज थी उसको ग्रुप किया और उसकी मीन निकाल दी। तो दैट इज व्हाट द पाइवेटिंग इज डूइंग हियर एंड दैट ग्राफ विल बी डिस्प्लेड।
अगेन आई हैव यूज्ड अनदर एग्जांपल वेयर इन आई हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी. मैंने डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम बनाया, उसको सॉर्ट किया और उसको प्लॉट करके दिखा दिया. तो दिस इज माय सिंपल ग्राफ. मैंने बॉक्स प्लॉट कहूंगा, बॉक्स प्लॉट आ जाएगा. तो दिस इज ऑल. नाउ अब यहां पर मैंने थोड़ा और एफर्ट किया, थोड़ा सा और काम किया कि जो सेशन 1 आप लोगों ने जो फाइल भरी है, अभी जो आपने फॉर्म भरा, मैंने उसको भी रिट्रीव किया, एनालाइज कर रहा हूं कि मेरा कुछ ग्राफ बन के आ जाए. तो यहां पर मैंने जो कॉलम के ऊपर काम किया, मैंने सिटी निकाली, स्टेट निकाली, सब्जेक्ट निकाला. थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोगों ने स्टेट भरी थी यूपी, किसी ने दिल्ली का दिल भी भरा हुआ था, कुछ ने उत्तर प्रदेश के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे. तो आई हैव रेक्टिफाइड ऑल दिस थिंग्स एंड जस्ट जनरेटेड दिस फाइल. नाउ अब प्रॉब्लम ये थी कि जब आप लोगों ने फिल किया तो कभी कभी क्या होता है, जब हम फिल कर रहे होते हैं तो कहीं किसी ने स्पेस डाल दिया, यानी कि दिल्ली के अंदर स्पेस डाल दिया. तो जब मैंने उसको डेटा को फेच किया और ग्रुपिंग करने की कोशिश करी तो उसने क्या किया, वो जो स्पेस था उसको नहीं उठाया. तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन भी लगाए, क्योंकि बच्चे ने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े होंगे 11th में 12th में. तो बच्चा प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके मैंने क्या किया, मैंने कहा डीएफ सिटी को सबसे पहले आप क्या करो, अपर में कर दो. और स्ट्रिप से क्या किया मैंने कि अगर कोई आगे पीछे स्पेसेस है वो उड़ा दो. तो मेरा डेटा एक, इसको हम ये भी कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ अ डेटा, कि मैंने डेटा को क्लीन किया है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट रिटन इन योर सिलेबस दैट क्लीनिंग ऑफ अ डेटा. क्लीनिंग ऑफ डेटा में मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को अपर केस में कर दिया. और दूसरी चीज मैंने क्या किया, आगे और पीछे का स्पेसेस भी उड़ा दिए. तो आई हैव यूज्ड सर्टेन string function which we have already taught student I think in class 11th maybe. So but student can go extensive, थोड़ा सा आगे भी जा सकता है अगर प्रोजेक्ट बना रहा है. तो अब मेरे पास क्या आ गया, मैंने अब क्या किया, ग्रुप बाय किया, क्योंकि अब मैं ग्रुप बाय करूंगा तो मेरे को एक्चुअल डेटा मिलेगा और मैं उसके ऊपर, जैसे कि अभी आप देखिए कि आंध्र प्रदेश से एक पर्सन ने फॉर्म भरा था, बिहार से एक, दिल्ली से 104, गुजरात से 2, हरियाणा से 12 लोग अटेंडिंग अ वर्कशॉप, महाराष्ट्र से भी एक है, दिल्ली और न्यू दिल्ली लोगों ने अलग अलग भरा था, 9 लोग हैं, पंजाब से 3, राजस्थान से 1, तमिलनाडु से 1 और उत्तर प्रदेश. दिस इज द summary whatever the form you filled till 9 AM today. So I have just executed, I have just fetched the data. हमें प्रोजेक्ट भी बच्चे से कुछ ऐसा ही बनवाना है कि रियल लाइफ डेटा उठा के उसके ऊपर ही एनालाइज कराना है. और मैंने उसका बार चार्ट बनाया और यहां पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया, मैंने बार एच कर दिया. तो मैंने बार एच बना दिया. उसके बाद मैंने काउंट करके लगा दिया कि भाई बता दो मुझे 12, यानी कि 12 स्टेट्स के लोग मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं. उसके बाद मैंने कहा कि मेरे को ये भी बताओ जी कितनी सिटीज से हैं, यानी कि टोटल सिटीज कितनी है जो मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं. तो इट्स टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली 31 सिटीज के लोग इज अटेंडिंग दिस सेशन. So that is the analysis, that is what the matplotlib, that is what the data visualization, pandas visualization. I hope you enjoyed the session.